Namaskar, my dear young friends. In this video, I will explain you list in Python. So in computer science class 11th, I have covered these all topics. Computer science class 11th, unit 1, computer system and organizations. This I have explained. Boolean logic, I have not uploaded any video till number system also. I have not uploaded any video. Encoding scheme also left. But for Python, I have uploaded all of this video. The practical video I am uploading in Hindi, so that you can watch from the I button, and I will provide you the link in description as well. So these all topics I have covered in that practical part. This Python fundamentals also. You can read notes, you can see the assignment questions, and you can do the practicals also. I have uploaded with solutions. Then if else condition, that also. Then iterative statement, for loop and all. That assignment and both are ready. Now practical is also ready, that I will upload very soon. So today we are going to start list in Python. So let me click on this button, read more. I will provide you this index page in description so that you can read anytime. So now you can see here, creating list in Python. So basically first, why we need list and what is the use of list, that let me introduce. So first of all, when we are doing a programming with Python, simply we are using for loop to repeat some numbers, or for loop to generate a list of numbers, a series we can say. So their series is generated, but what happens, we have to add some more code, and we cannot save them in particular unit. So that for loop we can continue, and then in for loop you can write the variables, and then again number of statements are required to accept the series of numbers. So rather than doing that, Python allows you to create a list. So in that list you can write any kind of data, you can insert any kind of data. All kinds of data are supported in Python list. So that is the use of list. Means you can generate different kind of list. हम जैसे हिंदी में कहेंगे कि अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है, लिस्ट का मतलब होता है कि कोई सूची हम तैयार करते हैं, वैसे अगर आपको सूची बनानी है तो सूची बनाने के लिए हम सिंपली लिस्ट यूज करेंगे. सो बेसिकली हाउ यू कैन क्रिएट दिस लिस्ट इन पाइथन. So as you know, Python supports different types of data types like numbers, strings and boolean values in a list. These values can store in different variables, but sometimes we need a list of similar or different types of data in a single unit, or we need something which prepare a set of similar or different values. So means इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप Python में काम कर रहे हैं प्रोग्राम के ऊपर, तो प्रोग्राम में हम जैसे काम करेंगे तो कभी हमें स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए. अब स्टूडेंट्स की लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रोल नंबर होगा. स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स का फीस हो सकता है. सो ये सभी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हमें उसको किसी एक यूनिट में डाल करके एक ही ऑब्जेक्ट हम कॉल करें और सारी चीजें हमें मिल जाए, ऐसा कुछ करना है तो तभी हम उसका यूज करेंगे लिस्ट का. तो लिस्ट इसीलिए यूज होता है. तो लिस्ट में बेसिकली हम ऐसी चीजों को डाल के स्टोर कर सकते हैं. तो यही इसका यूज है लिस्ट का, पाइथन लिस्ट का. सो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा. वन मोर टाइम, अगर यही चीजें वेरिएबल के थ्रू करनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. जैसे नाम के लिए अलग, फिर रोल नंबर के लिए अलग, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए अलग. तो ये अलग अलग वेरिएबल जब हम लेते हैं तो उसमें जो साइज है, तो हर एक वेरिएबल का अलग अलग साइज हो जाता है. तो उस मेमोरी को भी आप बचा सकते हैं लिस्ट लेने के बाद. और जब किसी पर्टिकुलर चीज को आप यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए हमें अलग अलग से सारे वेरिएबल वन बाय वन लिखने पड़ेंगे. तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है प्रोग्राम में भी, और वो मेमोरी भी कंज्यूम करता है. तो ऐसा न करके ये लिस्ट हमें दिया है, जो लिस्ट एकदम लाइट वेट कोड होता है. आप एक बार लिस्ट डालिए और सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं. तो ये है बेनिफिट लिस्ट का. तो आगे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम अ स्टूडेंट एज ए ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट एज ए ऑब्जेक्ट. लेट मी जूम दिस पार्ट सो यू कैन रीड. Okay, if you are watching in mobile, then you can read it properly. Okay, for example, let's assume a student as object. Now a student can have a roll number,
name, class, date of birth, etc. These details we want to use in a program all should come in a single unit. So here list will helpful to serve this purpose. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है. नाउ डेफिनेशन ऑफ लिस्ट. अ लिस्ट is a type of a Python collection that can store and manipulate similar as well as different types of data values. So whenever you need such type of values, you can use list. So अलग या तो similar data type आपको use करना है तो आप यहाँ पे Python list use कर पाएंगे. Those who are familiar with other programming languages may familiar with arrays. अगर आपने कहीं C लैंग्वेज सीखा है या C++ लैंग्वेज से आप थोड़े वाकिफ है तो आपको एरेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा. तो एरे क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं समूह, तो एक ही प्रकार की चीजों का समूह जो होता है उसे हम सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे कह सकते हैं. तो उसी एरे को यूज करना है. तो सिमिलरली पाइथन में भी ये लिस्ट है, उसी प्रकार से काम करता है. पाइथन लिस्ट आर क्वाइट सिमिलर टू दैट, बट ओनली वन डिफरेंस इज देयर that array is collection of homogeneous similar kind data, where Python list is collection of heterogeneous different types of data. तो यही एक इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है. Now creating a list in Python. To create a list, square brackets are used. It can be represented in following forms. तो यहाँ पे ये अलग अलग मैंने 6 टाइप के लिस्ट जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ मेंशन की हुई है. तो सबसे पहले लिखा है एम्प्टी लिस्ट. तो एम्प्टी लिस्ट होगा जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी. जब हमें यूजर डिफाइंड लिस्ट या तो फिर लिस्ट बाद में जब चेंज होगी तो ऐसी कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो तब हम क्रिएट करेंगे एम्प्टी लिस्ट. तो जब भी हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो सिंपली ऐसे स्टेटमेंट को हम लिखेंगे. मैं यहाँ पाइथन ओपन करके आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि कैसे ये क्रिएट होता है पाइथन आइडली. तो यहाँ पे मैंने पाइथन आइडल ओपन कर दिया है. तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम. जैसे हम वेरिएबल सिंपली क्रिएट करते हैं, सपोज एल, और इक्वल टू करके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए. तो ये है मेथड सिंपल एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का. अब आप यहाँ प्रिंट करेंगे तो अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में ऐसे दिखाई देगा सिर्फ एम्प्टी लिस्ट. तो ये एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला अभी. तो ऐसे आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड है लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज. आपको ऐसे अगर कोई नंबर्स देने हैं तो आप नंबर यूज कर सकते हैं. तो आइए इसमें नंबर डाल के देखते हैं. तो सबसे पहले एल इक्वल टू, ये ब्रैकेट डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट. अब जो भी नंबर लिखना है इसमें हम इंटीजर वैल्यूज इनपुट कर देते हैं. तो इसी प्रकार से आप इसको इनिशियलाइज करके प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे प्रिंट एल, तो आपको ऐसे लिस्ट में मिलेगा. जब ये वाला ब्रैकेट आता है तो उसका मतलब है कि लिस्ट यूज किया हुआ है. अब आगे जाते हैं. लिस्ट ऑफ मिक्स नंबर. यहाँ पे आप इंटीजर, फ्लोट, डबल कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर का ही होगा, फ्लोट भी यूज कर सकते हैं. देखिए इसमें थोड़ा चेंज करके फिर से नया लिस्ट बनाते हैं. एल इक्वल टू 5.50, 7.80, 6.75. तो इसी प्रकार से ये लिस्ट मैंने यहाँ पे जनरेट की है. अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एल. ये देखिए यहाँ पे सारे फ्लोट लिए हैं. एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इसे कॉपी पेस्ट करके, जिसमें मैं इंटीजर वैल्यू भी डालता हूँ, फ्लोट और इंटीजर दोनों साथ में. अब यहाँ पे जैसे 78, तो ये डाल दिया. 98 ये भी डाल दिया. अब प्रिंट करते हैं इसे, प्रिंट एल. तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका है ये वैल्यूज. तो ये इसकी विशेषता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हैं. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ लेटर्स. आप लेटर्स को ऐसे लिस्ट में डाल सकते हैं सिंगल कोट डाल करके. लिस्ट ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स आप डाल सकते हैं. लिस्ट ऑफ मिक्स डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो ऐसे आप पूरे कोई भी डेटा टाइप डाल करके यूज कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ लिस्ट इन पाइथन, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे उसे क्रिएट करते हैं. क्रिएटिंग लिस्ट विथ मल्टीपल वैल्यूज. तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डाल करके बनाया हुआ है. तो आइए देखते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके, ये जो कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे सिंगल कोट का प्रॉब्लम हो चुका है इसे. तो इसे ठीक करते हैं ताकि उसका जो होता है एनकोडिंग वो डिफरेंट होता है
और पाइथन में यहाँ पे ये डिफरेंट एनकोडिंग होता है। तो आप अगर कॉपी पेस्ट करते हैं MS वर्ड या ब्राउजर से तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। प्रिंट यहाँ डाल देते हैं L। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ मल्टीपल वैल्यूज हमने यूज की है इसमें। अब आगे देखते हैं, द लिस्ट वैल्यूज कैन बी एक्सेस बाय इट्स इंडेक्स। तो ये जैसे लिस्ट वैल्यू हमारे पास आती है तो उसमें सभी लिस्ट का एक इंडेक्स होता है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है तो उसे I0 कहेंगे, I1, I2, I3, I4, I5। ये I नहीं है, सॉरी, L है, L5। तो इसी प्रकार से यहाँ आप यूज करेंगे। तो L जैसे मुझे अगर प्रिंट करना है किसी एक वैल्यू को प्रिंट करना है या मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करना है पर उसके इंडेक्स से, तो यहाँ मैं प्रिंट करूंगा 1 और मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 3। तो यहाँ पे जो जो इंडेक्स नंबर 3 होगा 1 और 3 वो दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे। इसके बीच में अगर कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल कोट में ऐड कर देता हूँ और यहाँ ये डैश करके ऐसे डाल देते हैं प्रिंट। ये देखिए यहाँ पे 33.33 जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, मतलब 0 और 1, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ये 1, फिर डाला है मैंने 3 तो मतलब 2 और 3, थर्ड में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये दिखा रहा है हमें। तो इसी प्रकार से आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे है क्रिएटेड अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट यहाँ थोड़ा सिंपल है, लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आप असाइन करके ऐसे कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर जैसे आएगा ब्रैकेट तो उसी के अंदर एक बड़ा ब्रैकेट डाल के भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे ले लीजिए। तो इसका जो है प्रोग्राम कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अगेन वही कैरेक्टर का बार बार प्रॉब्लम होता है कॉपी पेस्ट में। तो यहाँ पे ये कर लिया है लिस्ट। अब प्रिंट करेंगे प्रिंट L। तो यहाँ पे एक लिस्ट और जनरेट हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे आपको अगर ऐसा कहा जाए कि भाई इसमें से कोई भी एक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करिए या परसेंटेज निकालिए, तो आपको इसी लिस्ट का यूज करके करना है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल। तो वो हम देखेंगे आगे इसको कैसे करेंगे। अभी आज सिर्फ हाउ टू क्रिएट लिस्ट वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अब है क्रिएटिंग अ लिस्ट फ्रॉम अ वर्ड और अ टेक्स्ट। तो वर्ड और टेक्स्ट से आप कैसे लिस्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो सिंपल है, L इक्वल टू यहाँ पे सीधा जो भी वर्ड आता है वो आप डाल दीजिए। यहाँ जैसे लिखा है लिस्ट और पाइथन लिस्ट, ताकि ये जो स्ट्रिंग है वो एक अलग डेटा टाइप है, इसलिए हमें यहाँ लिस्ट की फंक्शन यूज करना पड़ता है, लिस्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे ये डाल दिया, अब सिंगल कोट में डालूंगा मैं हेलो डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड डाला है इसको क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, पर ये कन्वर्ट करेगा हर एक लेटर को। देखिए इसमें आप देख सकते हैं इवन स्पेस को भी उसने यहाँ ले लिया है। देखिए ये एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, तो दोनों स्पेस अलग अलग इंडेक्स पे जाके रुक जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी भी वर्ड में से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अल्फाबेटिकली। उसके बाद है क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम यूजर इनपुट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोग्राम में इसी की जरूरत पड़ेगी कि आपको जैसे लिस्ट क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे, वो भी यूजर डिफाइंड वैल्यू से। तो यूजर डिफाइंड वैल्यू के लिए सारे वैल्यूज आपको इनपुट करा लेना है। तो L इक्वल टू इंटीजर और यहाँ पे डालेंगे इनपुट, और इनपुट के बाद यहाँ पे होंगी वैल्यूज। तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो लिस्ट में ही डालेंगे, तो तभी इसको एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने भी वही किया है कि जैसे वैल्यू होगी तो वह ऐसे नंबर को ले लेगा। अगर कोई ऐसे कंटिन्यू नंबर डालेंगे हम, एंटर, और अब जब प्रिंट L करेंगे तो ये सभी नंबर को इंडिविजुअल एंटिटी दिखाएगा। ये देखिए प्रिंट L अभी इसी प्रकार से आ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, पर अलग अलग वैल्यू अगर सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका। इसके लिए जब यूज करना हो आपको तो सिंपली इस प्रकार से करिए, L इक्वल टू लिस्ट कीवर्ड हमने यूज नहीं किया था ऊपर, लिस्ट इनपुट। तो अब जो करेंगे तो यहाँ पे
ये देखिए, और प्रिंट एल। तो यहाँ पे सभी नंबर को ऐसे सेपरेट ले लिया है, और आपको अलग अलग नंबर इनपुट करके यूज करना है तो आप वहां लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से मैं इसी को रिपीट कर देता हूं, कॉपी पेस्ट। तो अगर ऐसे नंबर डालने हैं तो यहाँ पे देखते हैं, और प्रिंट। तो इसी प्रकार से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, पर यहाँ पर भी इसने कुछ इस प्रकार से लिया। तो ये एक दिक्कत आपको यहाँ देखने में आ रही है कि जैसे हम नंबर डालते हैं तो उसका लिस्ट वो क्रिएट नहीं करता है। तो उसके लिए लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक और फंक्शन, और वो फंक्शन है इवेल। इवेल का मतलब होता है कि किसी भी टाइप के डेटा टाइप को वो आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली मैनेज करके आपको लिस्ट दे देगा। देखिए, यही सेम चीज हम करते हैं। अब एल इक्वल टू इवेल करके हम यहां डालते हैं इनपुट। ठीक है, अब सेम वही मैं सेम इनपुट डालता हूं, ब्रैकेट। फर्स्ट नंबर था 78, सेकंड नंबर था 98 और थर्ड नंबर था 87। तो ऐसे जब आपके पास लिस्ट हो और आपको इनपुट करना है तो आप इवेल फंक्शन का यूज कर सकते हैं और इतने बढ़िया तरीके से आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मुझे जो 3 नंबर लिस्ट में चाहिए थे वो मुझे यहाँ मिल गए। तो इसी प्रकार से आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहे तो कस्टमाइज आप कर सकते हैं यूजर डिफाइंड वैल्यू से। तो इसी प्रकार से ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो जो लिस्ट आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लेकर के आऊंगा कुछ फंक्शंस जो लिस्ट के साथ काम में आते हैं, और एक्सेसिंग द वैल्यूज, कैसे लिस्ट की वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th का पूरा कोर्स मैं यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ, और मैं काफी शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। पूरा उतना थियरी में उतना डिटेल में नहीं दिखाता, ताकि उतने की जरूरत नहीं होती है, तो आप सिंपली यहाँ समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और भी कोई डाउट है आपके, जैसे पाइथन रिलेटेड या इस कोर्स के रिलेटेड या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करिए। मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए।